Yes, very charming. Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and ready with your books and notebooks. Okay, so for noting down the important points. Okay, okay, so let's start with our topic. Yes, students, so we have covered in this chapter about the emergence of new dynasties, about their administration, about their warfare of wealth, and then we have started discussing about the Chola's empire. A closer look at Chola's empire. So we continue this topic. So in this chapter till now, we have discussed that how Cholas, they expanded their empire from Uraiyar. Earlier, they were having power here only, then Uraiyar to Thanjavur, and then they expanded their control to the Ganga Valley and to the West Asia also. And then we have discussed some splendid temples that, splendid means Shandar temples that has been prepared by these different Raja Raj and Rajendra, different Cholas rulers. And bronze sculpture of these Cholas empire is very famous. They are very finest structure that has been prepared in this empire, and they're very famous in the world. And today we are going to discuss about the agriculture and administration in these Cholas empire. That how the people, they were doing agriculture, what was the method, okay, how they were doing irrigation facilities, whether it was available, or which was the river that is close to this Chola empire, around which river this Chola empire flourished. Write in chat box what was the name of river. Yes, Jasleen, very good. Kaveri river. It was Kaveri river around which this Chola empire in the starting Uraiyar. Okay, Uraiyar. This place was also near this Chola empire only, and then yes, so we were discussing about these temples, that these temples were not only the center of worship only, but it was a hub of all the social, economic, and cultural activities. Clear? So these all the temples we have discussed, these all, and the very fine bronze images. So all the activities that being taken in this place. So now our next point, that how did the Chola rulers, they improve the agriculture. So next heading is agriculture and irrigation, or is heading में irrigation, agriculture and irrigation. What we will study about these, how they were doing the agriculture. So they were doing the agriculture of various crops they were growing, and for growing various crops, irrigation water is very much needed. So most of the water they were getting from the river Kaveri only. Okay, so Kaveri river, it provides. So Kaveri river, it provide all the river, water for the irrigation, and the area that is around the river, that is very fertile. So soil around this region was also very fertile, कि वहां पे जो भी हम क्रॉप्स उगाते थे वो बहुत ही अच्छी होती थी, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में जो हमारी क्रॉप्स होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो कावेरी रिवर में भी, कावेरी रिवर हमें प्रोवाइड करती थी water for irrigation and very much fertile soil.
ठीक है, तो ये हमें वहां पे अवेलेबल होता था। उसके बाद यहाँ इसी रिवर से, कावेरी रिवर से ही जो भी अब और भी एरिया इसके अराउंड और भी एरिया, अब हमने की ना कि हमने डेवलपमेंट कैसे की एग्रीकल्चर की, तो फॉर द डेवलपमेंट मोर लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन की जहां पे खेती की जा रही है उसके अंडर और ज्यादा लैंड को लाया गया। और वहां पे पहले अगर हमने एग्रीकल्चर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, अगर वहां पे जो भी फॉरेस्ट वगैरह है उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो वी क्लियर द फॉरेस्ट एंड देन वी ब्रिंग दे ब्रिंग चोलास एम्पायर, दे ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। और अपनी एग्रीकल्चर के लिए वो जो इरिगेशन थे वो कैसे क्या क्या तरीके यूज करते थे, एक तो कावेरी रिवर से वाटर दे आर गेटिंग, ठीक है, वहां से बहुत इजीली उनको जो वाटर था वो मिल रहा था। और समटाइम्स दे वर आल्सो डिगिंग वेल्स, ठीक है, वेल्स बना रहे थे, कैनाल्स एंड देन टैंक्स। तो ये सारी चीजें भी वो बना रहे थे फॉर इरिगेशन, ताकि जो वो इरिगेशन कर रहे हैं उनमें किसी भी तरह का उनको पानी की परेशानी ना हो, ठीक है। तो वेल्स बनाए जा रहे थे, कैनाल्स, जो कैनाल्स है कि पक्का वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि यहाँ से रिवर से पानी जो है वो हमारे फील्ड्स की तरफ आएगा। और अगर कुछ नेचुरल वहां पे थी, रिवर्स थी, तो वहां पे भी एम्बैकमेंट्स बनाए गए। एम्बैकमेंट्स इनकी साइड्स पे कुछ रेज्ड एरिया बनाया गया ताकि अगर पानी रिवर में ज्यादा भी आ जाए तो वो बाहर फ्लड ना आए, तो पानी, तो इसलिए थोड़ा रेज्ड एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ सेंटर में रिवर है, ठीक है, तो सेंटर में ये रिवर हो गया हमारा एरिया, तो इसके साइड्स में ये जो रेस्ड एरिया है तो ये बनाया जाता था ताकि जो पानी अगर बढ़ जाए तो फ्लड ना आए, ठीक है। तो ये जो हाई रेस्ड एरिया है दीज आर कॉल्ड एम्बैकमेंट्स, क्लियर। सो दीज वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, ठीक है, कि किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लडिंग वो ना हो और हमारे जो एरियाज हैं वो जो हमारे एरियाज प्रोटेक्ट रहें, ठीक है, बचे रहें वो। तो दिस वाज द डिफरेंट वेज दे वर इम्प्रूविंग देयर एग्रीकल्चर, ठीक है, दे वर हमारी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर रहे थे, डिफरेंट वेज वो यूज कर रहे थे इरिगेशन के लिए। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन that how they were improving their agriculture. Okay, so this is also one of the picture that has been shown in your book. These types of gate were made, the tanks they were built to store the rainwater, and in the tanks they were building they have built such type of gateways कि when there was more water तो these type of gateways they were built, ठीक है, टू प्रिवेंट कि ज्यादा पानी हो गया तो गेट बंद कर दिया जाता था, ठीक है, कम पानी, और जिस तरह की हमारी फील्ड को जरूरत होती थी पानी की उसी हिसाब से इसको यूज किया जाता था। सो देन द नेक्स्ट इज द चोलास एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चोलास एम्पायर इतना बड़ा था तो हाउ दे वर टेकिंग केयर ऑफ सो लार्ज एम्पायर, ठीक है। तो एवरी एम्पायर, तो इट नीड्स सम स्टेप्स, सम provisions, they have to give some provisions to the people and they have to collect, as we have discussed, king used to collect the revenue rent from the people, and he was also spending money for temples, for irrigation facilities, and for any more activities that has been used. So administration was taking place. So in the Cholas empire, every village was having its own assembly, and that assembly was called Ud or Sabha. So every village, अब हर एक village को क्या कहा जाता था,
उर कहा जाता था, और उस विलेज की जो भी लुक आफ्टर था दैट वाज बीइंग डन बाय अ विलेज असेंबली। तो एट सबसे लोअर में क्या हो गया, विलेज, ठीक है, विलेज वाज एट द लोअर, देन देयर वाज, और सिर्फ विलेज तो बहुत छोटी इकाई हो गई ना, तो जब ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला दिया जाता था, ठीक है, व्हेन ग्रुप ऑफ विलेजेस वर बीइंग टुगेदर, तो देन दे वर कॉल्ड, तो उनको कहा जाता था नाडू, ठीक है। So then they were called Nadu. So that was the group of villages. ठीक है, तो वहां पे विलेज काउंसिल भी होती थी, जो कि पीपल को अगर कुछ टैक्स कैसे लगाना है, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कैसे करना है, जस्टिस, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है जस्टिस। तो वो भी विलेज काउंसिल जो थी दैट वो उसको डिस्कस करते थे। So I hope this is clear. If there is any doubt. So every village has a village assembly which was called Ur or Sabha. Then after the village, when the villages, a group of villages was together, then it was called Nadu. And after that, so सबसे ऊपर हाईएस्ट पे, तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ये आपने नोट डाउन नहीं करना है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सबसे ऊपर किंगडम, राजा की पूरी किंगडम एम्पायर हो गया, ठीक है, चोलास एम्पायर। उसके बाद जो थे सबसे नीचे तो आ गए ना ये नाडू, ठीक है, सबसे नीचे नाडू आ गए और नाडू के नीचे विलेजेस आ गए, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे वेलन, ठीक है, आपकी ये वेलाला कास्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, आपकी बुक में नेम दिया हुआ है ये मुवेंदा वेलान, ठीक है, मुवेंदा वेलान नेम दिया हुआ है, तो ये वेलाला कास्ट से रिलेटेड थे, और ये उसके ऊपर जो मंडल था ये वर्क करता था। ये इस तरह प्रॉपर हायरार्की बनी हुई थी कि सबसे पहले नीचे विलेज है, फिर नाडू है, नाडू के ऊपर वेलांदाज हैं, फिर मंडल और फिर किंगडम, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि सबसे जो सबसे स्मॉल यूनिट थी वो थी यूर, ठीक है, सबसे पहले विलेज, सबसे स्मॉल सबसे नीचे क्या था, और विलेजेस थे, देन विलेजेस के ऊपर आ गए 1 मिनट। तो फॉर अभी आप सिर्फ इतना समझ लो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली है कि सबसे नीचे और मतलब जो विलेजेस की सभा होती थी, ठीक है, देन ग्रुप ऑफ विलेजेस देवर कॉल्ड नाडू, उसके ऊपर चले गए, देन देवर किंग हैज अपॉइंटेड दीज मुविंदा वेलान एंड अरैयार्स, तो किंग ने इनको अपॉइंट, सबसे ऊपर तो किंग किया, ठीक है, तो किंग ने इनको अपॉइंट किया हुआ है टू लुक आफ्टर दीज, ठीक है, मुविंदा वेलान एंड अरैयार, तो दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द किंग टू लुक आफ्टर दीज। तो इनसे अलग अलग डिफरेंट चीफ होते थे जो अलग अलग नाडूज विलेजेस के ऊपर किंग्स के द्वारा अपॉइंट किए होते थे, ठीक है, तो इनको सिर्फ आपने ये नेम्स याद कर लेने हैं, ज्यादा डिटेल में यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज। सो देन देयर इज डिस्क्रिप्शन इन योर बुक कि ब्रह्मदया, ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स को, हमने कहा कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है, तो उसी लैंड ग्रांट्स में ही, एडमिनिस्ट्रेशन में ही ब्रह्मदया ये एक लैंड थी जो कि किंग्स के द्वारा ब्राह्मण्स को दी जाती थी, ठीक है, तो ये भी, और ये इस ब्रह्मदया का भी जो सारा लुक आफ्टर था वो इस विलेजेस असेंबली के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। So then there were different village committees also, ठीक है, एक तो विलेज में सभा हो गई, जो सभा जो कि ब्रह्मदया उसकी भी सारी केयर टेक करती थी, और वहां पे विलेजेस में कुछ कमेटीज भी होती थी जो कि
लॉ एंड ऑर्डर, कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया किसी के बीच में, एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्या करना है, इरिगेशन के रिलेटेड क्या करना, तो ये सारे जो डिसीजंस थे वो विलेज कमेटीज के द्वारा लिए जाते थे। ठीक है, डिफरेंट जो विलेज कमेटीज थी वो ये डिसाइड करती थी कि क्या डिसीजन जो है वो लेने हैं। अब इसी में आपकी एक और पॉइंट है आपकी बुक में कि कौन इस सभा का मेंबर कौन बन सकता था, कि क्या हर कोई इस मेंबर का सभा का मेंबर बन सकता था? यस बच्चे, जो मुवेंदा विलान थे दे वर आल्सो अपॉइंटेड बाय द किंग, वो किंग के द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो वो किंग जो चोला गवर्नमेंट की उनकी सुपरविजन में काम करते थे, और जो किंग उनको अपॉइंट करता था वो बहुत रिच लैंडलॉर्ड होते थे। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि सामंत पहले अपॉइंट किए जाते थे किंग्स के द्वारा, तो इसी तरह ये चीफ भी किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, और ये बहुत रिच लैंडलॉर्ड होते थे कि किंग को लगता था कि हाँ अगर मैं इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तो ये संभाल लेंगे। ठीक है, तो वो उनको अपॉइंट किया जाता था। और जो ये डिफरेंट कमेटीज होती थी इनका मेंबर कौन, कोई भी विलेजर्स बन सकता था जो भी इस सभा का मेंबर बनना चाहता था। ठीक है, एक तो जो भी मेंबर बनना चाहता था उसका अपना घर होना चाहिए था। ठीक है, सेकंड उसकी जो एज है वो 35 से 70 इयर्स उसके बीच में होनी चाहिए थी, उसको पूरी वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट ये पॉइंट्स हैं कि कोई भी जो सभा का मेंबर बनना चाहता है तो उस सभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो अगर कमेटी का मेंबर बनना चाहता है तो वो एक ही कमेटी का मेंबर होगा, दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग कमेटीज बनाई जाती थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग बना दी, एग्रीकल्चर के लिए अलग बना दी, इरिगेशन के लिए अलग बना दी, तो ये डिफरेंट कमेटीज थी। तो इनके मेंबर्स जो थे वो कोई भी इनका मेंबर बन सकता था जो उस विलेज में रहता है। ठीक है, और वो जो है उससे लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जा रहा है, उसका अपना घर है। तो दीज आर द सम ऑफ देयर you can say qualities, ठीक है, that the member should own to become a member of these sabha or committees. So this was about the administration, and as we have discussed this is the river Kaveri. तो ये कावेरी रिवर से ये जो जितने भी इसके आसपास के एरियाज थे, ठीक है, तो इन सभी के आसपास के एरियाज को जो इरिगेशन थे, कैनाल्स, चैनल्स, तो इसी कावेरी रिवर के डिफरेंट जो चैनल्स थे वहां से कैनाल्स भी बनाई जाती थी फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स। तो नाउ these all the different dynasties that we have discussed in this chapter. So this was all about Chola's empire too. So Gurjar Pratihars, mainly the area they ruled, Rajasthan, Gujarat. राष्ट्रकूट्स मेन एरिया जो वेस्टर्न डेक्कन, पालास उनका मेन एरिया क्या था, बंगाल। देन चोलास मेन एरिया तो तमिलनाडु ही है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, बाकी तो इन्होंने धीरे धीरे एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, देन चालुक्यास उनका कर्नाटका, देन पल्लवास, देन कांचीपुरम से साउथ इंडिया। ये डिफरेंट डायनेस्टीज जो कि हमने इस अपने टॉपिक में डिस्कस की हैं। So I hope कि all these points are clear to you about the that we have discussed previous, and now today's all these about Chola's empire. Yes, वेदास, वेदास बच्चे जो डिफरेंट हमारी रिलीजियस बुक्स जो उस टाइम पे जैसे पहले, ठीक है, ये अगर आप, क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेद हैं जिनको कि उस टाइम पे ये माना जाता था कि ये बहुत रिलीजियस बुक्स हैं और इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जिनको इसकी नॉलेज होती थी वो समझा जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है कि इसको सारे वेदास की नॉलेज है। यस बच्चे, मुवेंदा विलान जो थे ये किंग के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे टू लुक आफ्टर द नाडूस, ए ग्रुप ऑफ विलेजेस, और ये कुछ रिच लैंडलॉर्ड हो सकते थे, जैसे उस एरिया में ये जो लैंडलॉर्ड उसके पास बहुत सारी जमीन है, ये बहुत रिच लैंडलॉर्ड है, और विलाला कास्ट का ही होना चाहिए। मेनली विलाला कास्ट के जो पर्सन्स थे वही जो थे ये चीफ बनाए जाते थे। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, so any other doubt?
यस, तो एट लास्ट ये तो सारा हो गया ना आपका कि विच न्यू किंग्स एंड किंगडम्स दे कम इन इंडिया। तो एट द सेम टाइम ये स्मॉल ब्रीफ आइडिया, ठीक है, छोटा सा आइडिया कि जिस टाइम पे इंडिया में ये सारे चेंजेस हो रहे थे, ये सारी किंगडम्स हो रही थी, उसी टाइम पे इन द सेम सेंचुरी 6th and 7th century व्हाट वाज हैपनिंग इन चाइना। तो उस टाइम पे चाइना में क्या था, उस टाइम पे चाइना में भी टैंग डायनेस्टी जो थी वो पावर में थी, ठीक है। तो फ्रॉम 7th to 10th centuries, मतलब 300 साल तक दैट पावर हैज बीन देयर। तो वहां पे भी उसकी जो बहुत लार्जेस्ट जो सिटी थी, उसकी कैपिटल सिटी थी जियान, ठीक है, वो कैपिटल सिटी थी। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, वैसे वहां पे भी ट्रेडिंग जो थी डिफरेंट कंट्रीज थे, तुर्क, ईरान, इंडियंस के लोग भी चाइना के साथ ट्रेड करते थे उस टाइम पे। तो तुर्क, ईरान, चाइना, ठीक है, ये सारे पीपल जो थे, जापानीज, कोरियंस, इन सबके साथ वो ट्रेड करते थे। तो ये एक आइडिया है कि जैसे हमारे यहाँ पे किंगडम्स डेवलप हो रही थी, किंग्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर रहे थे, अपनी एम्पायर पूरा एस्टैब्लिश कर रहे थे, एट द सेम टाइम इन चाइना देयर वाज टैंग डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग। क्लियर? और वहां पे भी उन्होंने, जैसे हमने यहाँ पे क्या ना, किंग अपॉइंट करता था डिफरेंट चीफ्स को। जैसे डिफरेंट चीफ हो गए ये अरैयार और मुवेंदावेलान, ये अलग अलग तरह के चीफ्स थे जो कि किंग अपॉइंट करता था। तो वहां पे भी, वहां पे जो अपॉइंट करने का जो मेथड था वो क्या होता था, वहां पे एक एग्जाम लिया जाता था और एक एग्जाम के द्वारा डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और जो भी उसका बनना चाहते थे वो एग्जाम देते थे, अगर वो क्लियर हो जाता था वो ऑफिशियल्स बन जाते थे। तो वहां पे वो सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नाउ इफ देयर इज एनी डाउट, सो प्लीज लेट मी नो। यस बच्चे, इफ देयर इज एनी डाउट, so please tell me that all the points of this chapter are clear. So have a look at all these chapter, go through the chapter thoroughly, okay, underline the points that you are reading, that we have discussed, okay, and also find out the questions that are given at the back exercise, okay. So that question answer we will discuss tomorrow. Yes bache, so okay, then revise all the points that we have discussed, go through the chapter, find out the answers of questions, okay, and then we will discuss it tomorrow. Okay, then thank you students, bye.